जी सर, स्टार्ट करें आप। Okay. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। Okay, student, in our previous lecture, we discussed section 1 and section 2 of listening section, a listening module. So today we will discuss section 1 and 2, and particularly two important question. One is a single type MCQs and the second one is a double option MCQs. So first I will share a screen and then we will start here. Okay. ओके स्टूडेंट, हम स्क्रीन को शेयर करते हैं यहाँ पर। ये जो है ना, रोज ही इशू हो जाता है। ओके मैम, ये स्क्रीन शो हुई है। जी सर, विजिबल है। आप ऐसा कर लिया करें कि एंटायर स्क्रीन को किया करें, आप विंडो को सेलेक्ट कर लिया करें। जैसे आपकी ये वर्ड वाली है ना, तो फिर उससे सिर्फ आपकी वही वाली चीज शो होती है। ओके मैम। So, today our third lecture, and we will discuss important MCQs, important question, single option, single MCQs, and double MCQs. Basically, in a section two, three, four type of question can come in actual exam. The first one is MCQs, second one is double MCQs, third is matching, and fourth one is map. But map is not more common, but first three MCQs, double and matching are more common in a part section 2. And in section 3 only three type of question are important: MCQs, double MCQs, or are matching. So today we will discuss about single option MCQs and double option MCQs. Basically, in a single option, three option, you need to select one option given from three, and in a double, usually five option are given, and you should select only two option. So these are signpost word that are important. Usually, MCQs are tricky, and the speaker use contrast word and also different word that are actually helpful for student to select the right option. So you should try to read these, and also maybe if you feel okay, you can also memorize these word. And the important thing I would also like to highlight is when you
solve MCQ, you should also try to know about the code. What is mean code? The code mean the question of MCQ usually in a order, but the option in disorder. Mean option is not in a order. For example, for question number 11, the speaker start option from A, B, C, or maybe from B, C, A, or C, B, A. Mean the option can be disorder, but the question in a order. So when you start practicing MCQs, you should always focus on a code, because when we try to focus on a code, then you can select a right option, because the speaker usually discuss all three option one by one, or in a very little case the speaker discuss two option, but mostly speaker discuss three option. And when you pay attention to understand all three option, then you can easily select the right option. Otherwise you cannot concentrate on the question which one is right, and maybe you select one of the option, you listen at the first. So you should try to practice with the code. And here we also try to learn some important tips. Then we will start practice of some MCQs, because we actually learn from practice rather than just from tips. For example, you start watching a different videos on YouTube, but your progress will not improve whenever you start practicing. So practice is important. So here we just practice these learn these tips, and then we start practice. ELTS listening multiple choice tips. Preparing the question, check for a title. The first important thing when you start practice, you should try to focus on the title of the question. And also sometimes title is also visible above all MCQs, and the MCQs uh, follow that title, mean every question relevant to the title. So you should try to highlight, and also you should learn and read the title of the question, because that thing actually help you what you need to find and what you should find in the option. You might be asked to respond to a question or complete a sentence. Find keyword in the question. The keyword will help you understand which answer are right and which are wrong. Mean keyword actually help you to find which one is a right. When you highlight during the given time of review. Paraphrase the keyword. Usually the speaker do not repeat the same word in audio or during the lecture or listening. They use paraphrase. For example, important is given in an option, but the speaker do not does not speak important. Maybe the speaker speak like essential and vital, crucial. So they use paraphrase. So when you start a review before starting the listening, you should try to interpret each option in your mind, because that thing actually help you to think about the question in a multiple way. If it is a list selection, multiple choice underlying the number of answer, you need to find, for example, choose three letter. Preparing the multiple answer option, read through the answer option, highlight similar option, you do not get confused. Many time, many words are similar in the option, so you should try to highlight, because if you do not highlight, you confuse and you cannot select the right option. That is an important point. And the second one is that, note the difference between those options.
Think of paraphrases for keyword. All answer option will probably be mentioned in the recording, but only one will be the right option. Mean the speaker discuss all three option, but only option will right. So you should try to verify that option. The question come in order, but the answer option will not come in order in the recording. Mean the question are in order in a sequence, but the option uh, do not in option. For example, you might hear language about option B before you hear option A. Mean the speaker start any option at a first. Don't think that the first answer you hear is the correct one. Keep listening. Watch out for answers that are given and then taken away again by the speaker. This means the speaker say green but later say sorry I meant blue. Listen for the word but or however this can mean a negative is coming which mean it might not be the right answer. Mean when the speaker use a contrast word or linking word during the listening, so you should try to pay more attention on these words because when you understand these words you can easily imagine speaker can change his opinion, so then you can find your answer. And maybe at the starting you find the correct one, but again you should follow the speaker. Maybe at the end speaker change his option, and then you should also change your answer. You can write on your question paper for the paper test. So use tick. Mean now is only computer based available, so you have no option for paper based, so you cannot tick. But maybe the copy and page maybe they give to the students, so you can also use meanwhile listening. Don't forget you can only listen once to the recording in your test. You cannot pause the recording. You must develop need reading skill to be able to read all answer and spot keyword before the recording start. This skill comes with practice. Mean when you continuously practice, then you should try to read each question during the given review time. And when you will start practicing this skill, so definitely you will you can review all questions before starting the audio. These are the types of multiple choice question. These are a single type, and this one is a double MCQs. But this is not common in the present test. So only these type of type A, type B, and type 3 is important, and type 3 4 is not important in the present IELTS test. So now we will go toward practice, so then you can understand how you can use our tips and strategy. Any question, student? स्टूडेंट अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, फिर आप जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है। दीज आर सिंगल टाइप MCQs, so we will practice. So first you should try to highlight some keyword because that thing help to uh,
follow the speaker, and also you can correct during listening the. Am I audible, sir? Yes, ma'am. ओके सर, मुझे लगा कि आप बोल नहीं रहे, तो आप स्टार्ट कंटिन्यू करें। यस मैम, आई थिंक समटाइम सिग्नल का इशू हो जाता है, जी जी। तो इसलिए जो है ना वो डिस्कनेक्ट भी समटाइम हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अ, यहाँ पर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इसे पढ़ना जो है ना ज़रूरी है। इससे आपको पता चल सकता है कि हमने क्या करना है। चूज़ द करेक्ट लेटर ए बी सी। तो ए बी सी में से हमने एक जो है ना करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, उस स्टेटमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर उसे हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम जो करेक्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो तो सम टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप जो है ना रिव्यू करें आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना करेक्ट हो, क्योंकि आपने खुद ही पढ़ना होता है, ना कि किसी को सुनाना होता है। सो सम टाइम कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट भी होती है। सो इग्नोर इट। द हैथर सेज पोट्री differs from others art forms because mean poetry differ from other art. How differ from other? This is an important thing. Why differs? So you can select last longer. जी सर, और इसमें ये भी मैटर करता है कि वो किसकी बात कर रहा है, मतलब पर्सन की बात सीधे की हो रही है, क्या पता यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है। तो हमने ये भी फोकस करना है कि सीधे के नजदीक क्या इसकी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी जहन में रखना होता है कि किस पर्सन के हवाले से हमने क्वेश्चन को देखना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यह भी पॉइंट ज़रूरी है कि जो मैं हमने हाईलाइट की है। मैम आप थोड़ा सा करीब बोल सकती हैं, आपकी वॉइस जो है ना कम आई है। Okay, because in section one only mostly one speaker involved in only one speaker discuss the question. So that is the reason I didn't mention about a different person. Usually in a part three, two or three speaker involved. So then you should also try to focus about the opinion of a different speaker, like two student or one teacher. So you should also focus on a different person, because that thing help you to select the right option. So here only one speaker during in the listening, so that is the reason I didn't mention. The second is practice by more people. So you can highlight practice here, you can highlight repaired. Okay, the second question is archaeologist. Archaeologist, ancient pottery. So here you can highlight clay, you can highlight mark on it.
here student is important point I will highlight here, mean the marks that are on it, किसके ऊपर, इसके ऊपर, जो आपके पास पोट्री है उसके ऊपर जो है ना मार्क्स। तो यहाँ पर जब ये यूज़ हो इट, देम, तो किसे ये रेफर कर रहे हैं वो भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तब फिर आप जो है ना इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी राइट ऑप्शन को। सम पीपल join हैथर पोट्री क्लास सर यहाँ बिकॉज। पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी करें। यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट या एंशियट की बात हो रही है, इसका मतलब है आसारे कदीमा में जब वो कोई चीज़ या उनकी खुदाई करते वक्त या उनको मिट्टी में से कोई चीज़ उनको इस्तेमाल के लिए जो चीज़ मिल जाए उसके बारे में भी हो सकती है बात, या फिर ये भी हो सकती है कि जो पहले दौर में जो है वो कोई ना कोई मिट्टी से चीज़ बनाते हों, देन उनको फिर भट्टे में या कुछ भी या कोई भी पहिया लाइक हो सकता है कि जिससे वो इस चीज़ से कोई भी मिट्टी की चीज बना के तो देन उसको पकाते हो या कुछ इस तरीके से भी ये वाला जो 12 वाला है ना इसका आंसर हो सकता है। सो सर नेक्स्ट कंटिन्यू। क्योंकि आंसर को तो हम गैस नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी है वो लिसनिंग में मौजूद है, तो जी उसे सर। हमने जो है ना सुनकर अपना आंसर को करेक्ट करना है। लेकिन ये है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो कीवर्ड है इनकी जगह वो क्या यूज़ कर सकता है, शेप की जगह वो क्या यूज़ कर सकती हैं। इन कीवर्ड को जो है ना हम देख सकते हैं, इनका इमेजिन कर सकते हैं, इनका डिफरेंट मीनिंग दैट कैन बी हेल्पफुल। The Hatha pottery mean the some people join the class. Why? This is important. Why they join, create an atom? जी सर, यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो हमने मेन फोकस ये रखना है कि वो स्टेटमेंट में हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शंस को हम इतना कंसीडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ऐसा जो ही मैम। मेन आइडिया रखना है वो सिर्फ स्टेटमेंट का रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल। वो मुझसे पूछ क्या रहा है। तो फिर जब ऑडियो में आएगा तो हाँ, आपको फिर समझ आ जाएगी कि हाँ, कि वो तो मुझसे ये पूछ रहा था, तो आप जल्दी से पिक कर लेंगे अपना आंसर। यस मैम, बिल्कुल ऐसे, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर आप इस तरह कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जी बिल्कुल, वो अंडरस्टैंडिंग वेरी करती है आपको। आप जिस तरह कंफर्टेबल है आप वैसे कर लें। और सर एक बात, आप यहाँ पर अपना नेम चेंज कर लें प्लीज, जो ओके मैम। पार्टिसिपेंट्स में है ना, ताकि वो रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। असल में मैम जब ये डिस्कनेक्ट होता है ना, तो उसके बाद जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो अक्सर जो है ना वो कॉन्फिडेंस भी उसी के साथ लूज हो जाता है। लेकिन जो है ना इसे भी हैंडल करते हैं इंशाल्लाह। जी जी, कोई मसला नहीं है, आप लेकर चले। व्हाट डज हैथर वैल्यू। अब देखें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेगा ये तीनों ऑप्शन, लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है जो इसके लिए वैल्यूएबल है। इसके लिए वैल्यूएबल सिर्फ एक चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर जो पीपल हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी क्लास, तो उनमें से जो मेन रीज़न क्यों करना चाहते हैं वो जो है ना आपके लिए मैटर करता है। डिस्कस वो सब करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आपने क्वेश्चन को हाईलाइट करना है उसके अकॉर्डिंग जो आएगा ना वो आपका राइट ऑप्शन होगी। द जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अक्सर ऐसा होता है कि सारे ऑप्शंस डिस्कस हो रहे होते हैं। हाँ, तो ठीक है। इसलिए मैम ने अब भी कहा है कि जो है ना आपकी जो मेन फोकस है वो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर है। अगर आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप समझेंगे आपने काफ़ी कुछ जो है ना बेहतर कर लिए। जी सर, बिल्कुल एमसीक्यूज के अंदर बेसिकली डिस्ट्रैक्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो एक ऑप्शन को बिल्कुल। क्या डिस्कस करेगा, वो आगे उसकी जाके नफी कर देगा कि उसको कैंसिल आउट कर देगा, फिर वो कोई और राइट मैम। आइडिया। तो जरूरी नहीं है, आपने ये फोकस नहीं करना कि कब ये ए ऑप्शन को वो बोलेगा, कब बी को बोलेगा, कब सी को, फिर मैं देख लूंगा कौन सा सही है। ऐसे नहीं, आपने सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करना है। और डिस्ट्रैक्टर्स पे, वो जो सर ने हमें कल बताए थे कि बट आ जाए तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट सही होती है। ठीक है, तो वो आपने साइन पोस्ट जो होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है। मस्ट ऑफ द विजिटर टू एडलमैन पोट्री।
तो जो ज़्यादातर हैं देखें, उन्होंने कहा मस्ट ऑफ द विजिटर। अगर कहें माइनर तो वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, जब वो कहे मस्ट तो समझें कि आंसर अब यहाँ पर है। तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। join, bring friends, join class, before, technique. But main focus your should be on your statement. Heather reminds her visitor that they should put on their apron, change their cloth, take off their jewelry. Okay. So now we know that about some important. Uh, Now we review it, and now we will start recording. So please take pen and pencil, and you should also write a code, because code is important. Which question, which option the speaker discuss first, and which one is a right option. Then you can more understand the speaker during the listening. Okay, let's start. सर मैं इसमें 1 मिनट एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जी मैम। सर यहाँ पे एक वर्ड है लास्ट पे एप्रोन आया था, तो उसका मतलब मैं स्टूडेंट को बताना चाह रही हूँ, वो लाइक तहबंद या धोती टाइप, धोती को ही बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट पे जो वर्ड आया था 16 का, 16 पे एप्रोन। स्टूडेंट आपको क्लियर है इस चीज़ का? जी मैम, ये आप ठीक कह रही हैं कि वो एप्रन्स है, तो उसका मतलब यही है कि जो हम पहनते हैं, ठीक है, अक्सर कोई जी काम जी वगैरह करते वक्त भी। लेकिन अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं हमारी प्रैक्टिस के दौरान या फिर फाइनल टेस्ट के अंदर ही, जिनके मतलब हमें नहीं पता होते। ठीक है, तो हमने उसके ऊपर ही स्टक नहीं हो जाना कि भाई मुझे वोकेबलरी मेरी ये नहीं ठीक, मेरी वोकेबलरी की जो है कलेक्शन माइंड के अंदर, उसके अंदर तो ये लफ्ज ही नहीं, मुझे नहीं आता। तो आपने उसके ऊपर स्टक नहीं हो जाना। काफी लोग होंगे उनको आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, जी जी एंशियंट का नहीं मैंने पता सर होगा। तो आपने उसके ऊपर स्टक नहीं हो जाना, ठीक है। आपको एक मतलब नहीं पता, आप आगे चलें, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो अक्सर हमें कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हो रहा होता है ना सेंटेंस के अंदर, उसी से उसका मतलब थोड़ा बहुत पता लगने लग जाता है। तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना इस बात पे। अक्सर हो जाते हैं हम लोग कि यहाँ पर तो मुझे मतलब ही नहीं पता, तो अब ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप बस गो थ्रू करें इसको, ठीक है। जब ऑडियो आएगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ बिल्कुल मैम, ऐसा ही है जैसे आर्कियोलॉजिस्ट है या दूसरे मीनिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपको जो है ना 100% उनके आए। लेकिन कुछ जो वर्ब होते हैं उन्हें आप जो है ना इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो आपके लिए जो है ना फायदेमंद हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही। जी सर, कंटिन्यू करें। Potter Heather McCallum speaking to a group of people who are visiting a pottery, a place where people make pots and other objects from हम clay. स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Welcome. My name's Heather McCallum, and I'm one of the potters who work here at Edelman Pottery. Before we go into the workshop, I just want to say a bit about the craft of pottery. Then we'll have a look at the equipment, and you can try making a pot of your own. Like many people, I'm sure you know that pottery as an art form is tens of thousands of years old. And we know this because it stands the test of time. Things like baskets and pictures don't survive in the earth in the same way that pots do. And even if ancient pots are तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, अगर आपने सुनी है तो? जी कोई स्टूडेंट बताएगा राइट ऑप्शन? जी Sir, आप A would be the A option A should be the right answer because she said that pots remain
more time. Yes, Um, mean last longer, mean the take yeah. long time. Mean in the audio they said thousand of year. Yes, so that is a right option. Okay, so can anyone tell me about the code the speaker use? Which option the speaker start first? Okay, the option say start first, then option A, but speaker didn't talk more about option B. Usually talk all, but sometime the speaker talk about two, but mostly talk about three option. Okay, so now we will move toward question 12. अब इस ऐप की इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम डायरेक्ट जहाँ से स्टार्ट करना हो ना न्यू क्वेश्चन वहाँ से भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं क्लिक करने से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो अब ऑप्शन 12। In small pieces, they still provide a lot of information about the past. There's no doubt that pottery has given archaeologists a fascinating insight into how ancient humans lived. The shape of an artifact may have been lost, but archaeologists can tell whether the pots were for, say, storage or cooking by examining the impressions on the clay, the scratches from tools, and the clay itself can reveal where the pots came from. When I तो कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट ठीक है? सर आई थिंक सो, मुझे बी लग रहा है इसका। कोई और स्टूडेंट? जी सर, चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं, आप उधर देखें। बी भी कह रहे, मैं भी बी के साथ जाऊंगी। काफी दो ने ए कहा है, ठीक है। देखें स्टूडेंट, उन्होंने जो सबसे पहले कोड यूज किया वो किया सी। सी उन्होंने कहा है शेप, लेकिन उन्होंने कहा है लास्ट। जो उसकी शेप है वो लास्ट है, वो मतलब इन करेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये जो सी है ये तो गलत हो गया। बाद में उन्होंने ऑप्शन बी ऐसे यूज किया कि उन्होंने कहा है कि जो स्क्रैचेस है ना वो उनके ऊपर है, तो scratches mean marks. So that is the reason I said to you, you should try to interpret your keyword that help you find the right option. तो उन्होंने सेम यूज नहीं किया, उसने पैराफ्रेज किया है। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन है बी। जी सर, और एक और बात हमने ये देखना है, अगर हम स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें तो हमने यूज ऑफ एंशियंट पॉटरी को देखना था। हाँ बिल्कुल ये है। तो उसने शेप का कहा, वो तो उसने जनरल बात की। और जब उसने हम्म, ये बात की कि क्ले से बने हैं, कि वो किस चीज से बने, तो वो उसके ओरिजिन को डिफाइन कर रही थी कि वो आए कहाँ से। ठीक बिल्कुल। है, और जो मार्क्स थे वो बता रहे थे कि वो जो पोर्ट्री थी या वो टूल्स थे वो किस चीज के लिए यूज हुए थे उस जमाने में। तो हम्म। इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम बी के साथ ही जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि स्क्रैचेस थे उनके ऊपर हाँ जो। जी, वो फिर मार्क्स के साथ हो गया हमारा। हाँ स्टूडेंट, दोबारा मैं इसे जो है ना करता हूँ प्ले यहाँ से। no doubt that pottery has given archaeologists a fascinating insight into how ancient humans lived. The shape of an artifact may have been lost, but archaeologists can tell whether the pots were देखें जब उन्होंने सी डिस्कस किया उसके बाद उन्होंने कहा बट कंट्रास्ट वर्ड आया है, तो मतलब अब जो आपका आंसर है बिल्कुल इसी के पीछे आएगा। फिर मैं इसे करता हूँ। the shape of an artifact may have been lost, but archaeologists can tell whether the pots were for, say, storage or cooking by examining the impressions on the clay, the scratches from ओके स्टूडेंट, आपको समझ लगी है कि कैसे कंट्रास्ट वर्ड यूज करते हैं, तो उसके बाद जो है ना आंसर आ जाता है। इनके ऊपर आपने जो है ना स्पेशल अटेंशन रखनी होती है। ओके जी, अब हम क्वेश्चन जो है ना 13 को डिस्कस करते हैं।
हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। The clay itself can reveal where the pots came from. When I ask people why they want to take a pottery class with me, they sometimes talk about these things. Like our ancestors, they hope that something they create will also last longer than they do. That their work, whether it is good or not, might say something about humanity many years after their death. Of course, you will all have your own reasons for coming here. जी स्टूडेंट, कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का? सर मुझे तो सी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जो है ना ऑप्शन ऑप्शन जो है ना सी है आपके पास। लेकिन ये जो सेकंड है, फाइंड समथिंग दैट दे आर गुड एट, तो इसे उन्होंने कहा है ये गुड और बैड हो सकती है, फिर उन्होंने कहा है ये क्लियर नहीं है। ओके। और यहाँ पर उन्होंने ये जो क्यों उन्होंने ज्वाइन किया है, ये भी उन्होंने यहाँ पर स्पेशल जो है ना मेंशन किया है। अगर हम इसे दोबारा प्ले करें तो When I ask people why they want to take a pottery class with me, they sometimes talk about these things. Like our ancestors, they hope that something they create will also last longer than they do. That their work, whether it is good or not, might say something about humanity many years after their death. Of course, you will all have your ओके स्टूडेंट, अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। टाइम क्योंकि काम है, इसके बाद जो है ना मैम सबा जो है ना आपको डबल एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करती हैं। तो जी लास्ट सर, मेरे क्वेश्चन। ख्याल से हम डबल क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं क्योंकि 20 मिनट हैं सिर्फ। हाँ बिल्कुल। मैम सब तो आप स्टार्ट करें। स्टूडेंट, अगर यहाँ तक अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। बीच में हमने वो भी देखा है कि कंट्रास्ट ओके वर्ड मैम। के बाद आंसर जो है ना आता है, इसके ऊपर भी आपने अटेंशन रखनी होती है। जी मैम सबा। जी मैम सबा। जी सर, उन्होंने जी कहा सर, मैं क्वेश्चन। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप तब तक इनसे किसी कोई क्वेश्चन पूछ पहले लें। मैं स्टॉप करूंगा फिर आपकी होगी। अब करें। जी सर। जी सर, मैंने आपको एक बात कहनी थी। ये जैसे अभी भी आपकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक। सर मेरी बात सुने, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर ऑप्शन का, तो यहाँ पे शेयर साउंड और साथ में आ रहा है ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो शेयरिंग। वीडियो शेयरिंग पे करना है क्लिक। जी मैम, आप उन ऑप्शंस को रहने दें, कुछ भी ना करें उनको, सिर्फ आप एप्लीकेशन जो विंडो है उस पर क्लिक करके शेयर कर दें। ओके मैम। वो मैंने अभी देखा तो वो मेरे ऑप्शंस वो टिक नहीं है, मतलब वो चूज नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कि वो कर लें, तो नहीं, अब वो ना करें, आप सिर्फ विंडो के ऊपर क्लिक करके शेयर कर दें। मैम आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हेलो। जी मैम। मेरी स्क्रीन मैम शो हो रही है? नो मैम, अभी तक तो नहीं। मैम मैंने अपनी ओपन तो कर ली है, देन पता नहीं क्यों नहीं हो रही।
आपने शेयर करके की है? जी मैम। चले मैं अपनी कर देती हूँ। मैं फिर कर देता हूँ मैम। चले सर आप कर दें। जी मैम सब। अम, ये 1 मिनट सर। जी मैम सब ये शो हो रही है आपको? जी सर। ये है। जी जी, ये 17 to 18 सर। मेरी स्क्रीन यहाँ से ना वाली बड़ी नहीं हो रही है। बड़ी नहीं हो रही? जी सर। फिर अब? 1 सेकेंड सर। जी मैम सबा आप इनबॉक्स देखिएगा, मैंने आपको वीडियो भेजी है, वहां से देखिए। जी मैम। ओके सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डबल चॉइस वाले क्वेश्चंस। इसमें जैसे सर पहले बता के हटे हैं कि आपके पास सिंगल चॉइस वाले या 2 चॉइस वाले आपके पास आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सिंगल चॉइस वाले तो सर ने आपको करवा दिए हैं। देन जो डबल चॉइस वाले हैं ना, उसको आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्योंकि जो एग्जामिनर है या वो स्टूडेंट्स को उनमें कन्फ्यूजन पैदा करता है ज़्यादा दे के। लाइक जैसे अभी सिंगल चॉइस वाले हैं तो उनमें अगर आपने देखे हो ऑप्शंस 3 होते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें ऑप्शंस ई तक हैं। मोस्टली इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और देन इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लाइक जैसे मैं टिप्स और ट्रिक्स की बात करती हूँ, तो जो हमारे पास गिवन टाइम है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने टाइम के अंदर अंदर स्टेटमेंट को रिव्यू करना है। ठीक है, देन फिर उसके बाद आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करेंगे तो उसके साथ साथ फिर हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ऑडियो कहाँ पे चल रही है, और हमने यहाँ पे जिधर हाईलाइट किया है तो उधर उसका की पॉइंट क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम फौरन क्या होते हैं कि अटेंटिव हो जाते हैं कि हमारी ऑडियो कहाँ पे चल रही है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम टिप्स पे आते हैं। तो टिप्स पे हमने क्या करना है, टिप्स पे क्या करना है कि हमने सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पर फोकस करना है। देन उसके बाद हमने अपने ये चीज का देखना है कि अगर वो कुछ वर्ड या लाइक यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेंटेड, तो इसका मतलब ये है कोई डेट वगैरह का जिक्र कर सकता है या फिर कोई ईयर्स का जिक्र कर सकता है। फिर उसके बाद हमने कोई कीवर्ड्स लाइक सेफ्टी वर्ड्स भी, उन्हें भी गौर से सुनना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपने इसमें एक चीज ये देखनी है कि लाइक हम जैसे प्रिडिक्शन कर लेते हैं, वो भी करना जरूरी है देन, लेकिन ये नहीं है कि आप बगैर ऑडियो ही प्रिडिक्शन करके उसके आंसर लगा दें। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि अगर हम इससे करेंगे तो हमारे जो है मे बी ऑडियो में कुछ बोले और हम कुछ आंसर लगा दें, तो देन ये भी जो है वो ठीक नहीं है। तो आपने इस चीज में से किस चीज का ख्याल रखना है कि जब हम हमारे पास डबल आंसर को है, हम कैसे मैनेज करें। मोस्टली स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतने ज्यादा, तो हम इसको कैसे, हमें कैसे याद रहेगा कि हम इस चीज को अच्छे से देखें, लाइक हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम किस चीज पे क्लिक करें। तो हमने सबसे पहले जब हमारी लिसनिंग चले, तो उस लिसनिंग चलते वक्त हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने एक पेंसिल अपने पास रखनी है। देन जो भी हमें आंसर लग रहा है उस पे हम सर्कल कर देंगे। फर्स्ट चीज तो ये है, लेकिन देन सेकंड चीज क्या होगी हमारे पास, या तो ऑडियो जैसे कंप्लीट हो जाए, देन आप ऐसे करें कि फाइनल आंसर जो है ना अपने लगा दें।
क्योंकि आर्ट्स वाले जो है ना वो आपको जानबूझ के जो है एक्स्ट्रा ऑप्शंस देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और स्टूडेंट यहाँ पे गलती करे और स्टूडेंट के मार्क्स कट जाएं, जिनकी वजह से बैंड हमारे कम हो जाते हैं। और टिप्स तो हमारी कंप्लीट हुई। देन हमारी स्ट्रेटजीज ये है कि हमने फोकस ऑन कीवर्ड करना है, नोट कंप्लीट सेंटेंस। आपने इसमें पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, जस्ट आपने क्या करना, जो चीज आप हाईलाइट कर रहे हैं, जो चीज आपको याद रह जाए। जैसे यहाँ पे ए में है व्हाट द फंक्शन, तो आप फंक्शन को जो है उस पे क्लिक करें ताकि आपके माइंड में रहे ये बात कि मुझे ये चीज याद रह जाएगी, ना कि आप कंप्लीट सेंटेंस पढ़ें। और क्योंकि जब हम हाईलाइट कर रहे होंगे तो देन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम हाईलाइट भी करें और देन हम पढ़ भी ना पाए, फिर हमारा टाइम अप हो जाए। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से रखना है ना, ठीक है, ये चीज हमें। और सबसे पहले तो इसकी इंस्ट्रक्शन पे देखना कि हमें कितने वर्ड उसने कहा है कि कितने करेक्ट करने हैं आपने वर्ड। 1 है 2 है, तो यहाँ पे मोस्टली या तो 2 हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट 2 ऑप्शंस है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? जी मैम, यहाँ पर ही आप कैरी ऑन करें। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है दिया हुआ जैसे Which 2 things does Heather explain about clients? यहाँ पे एक्चुअली में क्लाइंट्स क्या है कि क्लाइंट्स के बारे में कोई से 2 चीजें जो कोई एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स मीन कोई भट्टी, कोई फर्नेस टाइप हो सकती है, ठीक है, लाइक पोल्ट्री ब्रिक्स या फिर जो कोई भी हाई टेम्परेचर पे पकने के लिए जो यूज हो, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट ये है ए पार्ट को अगर आप देखें, व्हाट देयर फंक्शन इज। सर आप फंक्शन को हाईलाइट कर दें। मैम किसे हाईलाइट करना है? फंक्शन को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का काम क्या होता है, यानी कि किस पर्पस के लिए जो है हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बी, व्हेन दे वर इन्वेंटेड। अब इसका मतलब है क्लाइंट जो है वो कब इन्वेंट हुई थी। अब यहाँ पे इन्वेंटेड है तो आप इन्वेंटेड को सर हाईलाइट कर दें। कोई पास टाइम में हो सकता है, कोई हिस्ट्री टाइप कोई चीज के बारे में बता सकते हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन सी है वे ऑफ मैम कीपिंग देम सेफ, क्लाइंट को एक्सक्यूज सेफ। मी मैम। यस मैम। जी मैम, जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करें, सिर्फ 6 से 7 मिनट हैं। ओके 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 मैम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लाइंट को सेफ रखने के लिए कौन सा तरीका, कोई सेफ्टी रूल या कोई प्रिकॉशंस हो सकती है। डी, वे टू पुट वन इन योर होम। इसका मतलब है कि घर में एक क्लाइंट कहाँ रखनी चाहिए, लोकेशन या कोई प्लेस वगैरह आप उसमें बताएंगे, ठीक है। और ई में है व्हाट सम पीपल यूज इंस्टेड ऑफ वन, यानी कि कुछ लोग क्लाइंट के बजाय क्या यूज करते हैं, अल्टरनेटिव चीज भी हो सकती है। देन सर आप स्टार्ट करें, ऑडियो स्टार्ट कर दें। In the workshop, have a look around. There's a lot going on. To make pottery that will last, you need a potter's wheel, a kiln, which is basically a very hot oven where you fire the pottery, and some tools. So, first, the kiln. If you look over in the far corner, you'll see one of ours. Since their invention, kilns have changed very little, though in the past 20 years, a lot of progress has been made in temperature control. Basically, a kiln removes the water from clay at temperatures of around 1,000 degrees Celsius. This allows anything you've made to set permanently in shape. It's a pretty ugly, heavy object that's hard to keep in a house or flat, so most people don't have one. You may think, can't I use my oven? Well, that's possible, but domestic ovens don't really get hot enough, and eventually the clay will crack and fall apart. Some people fire pottery in a fire pit outside, but bear in mind that can be dangerous. You also need to know about safety procedures for kilns,
as they release toxic compounds into the air. Every potter needs a potter's wheel. This machine is used to shape the clay into an object with circular walls or sides, मैम such मेरे as ख्याल a से वो bowl. सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर। Its invention जी जी मैम मैं ये revolutionized कह the रही थी कि pottery. इनके या तो दोनों को लास्ट पे ही कर दें या फिर इसको स्टॉप करके फर्स्ट का बताया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है इस वजह से। जी मैम आप बताएं मैम फर्स्ट आप। को ही कर लें कवर। जी मैम। मैंने कहा आप एक ही क्वेश्चन को कवर कर लें, मतलब एक ही एमसीक्यू है ना, ओके इसी ओके। को। जी स्टूडेंट्स आपको क्या लगा इसका? I think it's A and C because she mentioned the function of kiln and also ways of keeping them safe. लेकिन मैम ये भी तो देखिए ना कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी बाकी भी तो रहती है, तो इसका मुझे भी जो है वो लगा यही है फर्स्ट वाला। मैम बेसिकली ये जो आपने सी कहा है ना, वो इसलिए करेक्ट नहीं है। उसमें उन्होंने प्रोसीजर तो बताया लेकिन कोई वे नहीं बताया, हाउ मैनी जी जी। मेथड एंड आर डिफरेंट। कोई कुछ चीज़ नहीं उन्होंने कोई हाईलाइट नहीं की कि उस वे से हम उसे जो है ना कीप सेव रख सकते हैं। ये चीज़ है उसमें, तो जी इसलिए जो सी है वो नहीं जी है। सर, वहां पर उसने सिर्फ ये बताया कि वो फायर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से वो डेंजरस है कि उसको घर पे ना रखें। हाँ। वो इस वजह से मैम को शायद कंफ्यूजन होगी कि वो सेफ और डेंजरस का वो आया ना कंट्रास्ट वर्ड। हम्म। तो मेरे ख्याल से ए और डी है, सॉरी ए और ई। ई है। जी ए और ई। ई। सर आप ऑडियो स्टार्ट करें सर, अभी टाइम है हमारे पास 4 मिनट। दोबारा करते हैं। So जी सर। now we're in the workshop. Have a look around. There's a lot going on. To make pottery that will last, you need a potter's wheel, a kiln, which is basically a very hot oven where you fire the pottery, and some tools. So first, the kiln. देखेंगे उन्होंने वो फर्स्ट यूज किया है, जो मैंने कहा था कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब फर्स्ट उन्होंने यूज किया है, मतलब कि अब वो आंसर, इसके बाद वो ऑप्शन को डिस्कस करना शुरू करेगा। If जी you सर। look over in the far corner, you'll see one of ours. Since their invention, kilns have changed very little. Though in the past 20 years, a lot of progress has been made in temperature control. Basically, a kiln removes the water from clay at temperatures of around 1,000 degrees Celsius. यहाँ पर उनने जो है ना क्वेश्चन वन को डिस्कस किया है कि उसका जो बेसिक जी पर्पस है वो क्या करता है, रिमूव करता है। This allows anything you've made to set permanently in shape. It's a pretty ugly, heavy object that's hard to keep in a house or flat, so most आप देखेंगे डी उन्होंने कहा कि हार्ड टू पुट इन अ हाउस, तो यहाँ पर उन्होंने कहा पुट इन अ हाउस, तो वहां पर उन्होंने कहा हार्ड मतलब इम्पॉसिबल है, तो ये डी इसलिए फिर जो है ना निकल जाएगा। people don't have one. You may think, can't I use my oven? Well, that's possible, but domestic ovens don't really get hot enough, and eventually the clay will crack and fall apart. Some people fire pot. यहाँ पर उन्होंने जो है ना ऑप्शन ई को कहा है कि जो आपके पास ओवन है उसे हम जो है ना कैन नॉट बी यूज बट सम पीपल यूज इन अ डिफरेंट पर्पस। जैसे यहाँ पर है व्हाट सम पीपल यूज इंस्टेड ऑफ वन, कि कुछ पीपल उन्हें यूज नहीं करते लेकिन कुछ उसे जो है ना यूज करते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो लेकर चले। जी मैम यहाँ तक ही है। जी सर, आप इस पे लगा दें और उनको सबमिट करें, देखिए हमारे आंसर। जी स्टूडेंट्स, कोई इशू, कोई चीज ऐसी जो समझ ना लगी हो? स्टूडेंट, important thing is that you should try to focus on a code। मीन आपको जितने भी इसमें ऑप्शन है सब के ऊपर फोकस रखनी चाहिए कि इसे वो किस वे से गलत करता है और इसे वो किस वे से राइट करता है। तो जब आप कोड के ऊपर आप देखेंगे तो उसके बाद जो है ना आप इजीली
जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। सिंगल चॉइस में तो अक्सर होता है कि वो सारे ऑप्शन को शायद डिस्कस ना भी करें, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, जैसे ये डबल चॉइस है, तो इसके अंदर वो अक्सर सारे ही डिस्कस कर रहा होता है। जी, और ये किसी जो का और आपने, कोई क्वेश्चन है? जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैम आप करें बात। नहीं, मैं बस एंड करने लगी थी, टाइम हो गया। जी मैम। चलें, ठीक है जी फिर। जी जी मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।